Welcome to today's episode of the Be Sure podcast. Living with epilepsy involves challenges beyond seizures, including stigma and emotional impact. However, with the right treatment and adjustments, many people with epilepsy can lead active lives. To help us better understand this, we are fortunate to have a renowned consultant neurologist with extensive experience in treating epilepsy. Welcome, Doctor. Hello everyone, myself Dr. Nikita and I work as a consultant neurologist in Panchkula, Chandigarh Tri-City, and I'm here to just bring a lot of awareness regarding epilepsy and bust certain myths which are there regarding epilepsy so that it helps people who are suffering from epilepsy. Thank you. Let's start with the basics. What exactly is a seizure and how does it affect the brain? Okay, so basically, our brain is like an electric circuit box. So there are a lot of signals going on, electric signals going on, and how we feel, how we react, how we sense a thing, and whatever movements our body made is basically controlled through these electric circuits. So seizure or fit is basically a type of a short circuiting. So there is abnormal, excessive electric currents which are flowing and that results in a seizure. तो हम लेटमैन टर्म में यही बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किटिंग हो गई दिमाग में उसके कारण आपको दौरा या फिट पड़ गया. So and with this kind of increased electric activity in the brain, they can be patient can land up in a convulsion मतलब हाथ पैर टाइट हो जाना, मुड़ जाना या बेहोशी हो जाना या अचानक से confused state में चले जाना. So these are the things which happen when a patient has seizure. What is epilepsy? So epilepsy is basically a medical condition. It's a disorder wherein a patient has repeated episodes of seizures. So more than two unprovoked seizures is known as epilepsy. And epilepsy को हिंदी में हम बोलते हैं मिर्गी की बीमारी. So बार बार repeatedly किसी को fits पड़ना, दौरे पड़ना. So that is known as epilepsy. And epilepsy itself has a lot of causes and it is of different types. And a patient can have actually different types of seizures in an epilepsy. What are the different types of seizures? And do they affect people differently? Yes, actually there are broadly अगर हम देखें तो दो टाइप्स के सीजर्स होते हैं. एक तो होता है जो पूरे ब्रेन की एक्टिविटी में जो गड़बड़ हो रही है या जो शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है, अगर वो पूरे ब्रेन के दोनों हिस्सों को इन्वॉल्व कर रही है तो हम उसको कहते हैं जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, जिसमें हम बोलते हैं कि चारों हाथों पैरों में झकड़न हो जाना, स्टिफनेस आ जाना या झटके लगना, बेहोशी हो जाना. सो ये सारी चीज़ें होती हैं जनरलाइज्ड जब सीजर होता है. और जब फोकल सीजर होता है, फोकल मतलब कि ब्रेन का एक हिस्सा या एक भाग जिसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है जिसके कारण सीजर होता है जो बॉडी के एक तरफा साइड को इफेक्ट करता है, जैसे कि एक राइट हाथ में या राइट पैर में या लेफ्ट साइड में कहीं पे हो रहा है या एक साइड फेस में हो रहा है. तो ये सारी चीजें जब होती है तो उसको हम फोकल कहते हैं. एंड एपिलेप्सी को हम जनरलाइज फोकल तो बोलते ही, फिर उसमें फर्दर हम टाइप्स डिवाइड करते हैं कि कोई टोनिक है बस अकड़ाहट वाला, कोई क्लोनिक है झटके वाला, फिर कोई मायोक्लोनिक है चूकने वाले झटके, अचानक से ऐसे कोई चीज आपके हाथ में हो तो वो छूट जाना वो वाले हो, या चलते चलते अचानक से बिल्कुल ही आपकी बॉडी की टोन खत्म हो जाना, एटोनिक सीजर्स, अचानक से गिर जाना. या छोटे बच्चों में कॉमनली हम सुनते हैं कि वो ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल स्टेयर करते रहते हैं एक जगह पे, तो वो एब्सेंट सीजर्स होते हैं. तो डिफरेंट टाइप के सीजर्स होते हैं और जरूरी नहीं है कि एक इंसान को एक ही टाइप का सीजर होता है, एक इंसान को मल्टीपल टाइप के सीजर्स भी हो सकते हैं. Well, that's really helpful to understand. Well, what are some of the signs or symptoms of epilepsy that caregivers should look out for? सो लाइक अभी बताया है कि कुछ साइंस हैं, जैसे यही है कि सडनली कोई आपसे बात कर रहा है और उसको एक साइड का झटका लगना शुरू हो गया, तो यू नो इट कैन बी अ टाइप ऑफ फोकल एपिलेप्सी सीजर. एंड या पेशेंट अचानक से बेहोश हो गया है, अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है, पेशाब निकल जाता है कपड़ों में, जीभ कट जाती है. और लाइक वी डिस्कस एब्सेंट सीजर जिसमें बच्चा बस एक मतलब पढ़ाई कर रहा है, क्लास में बैठा है, टीचर पढ़ा रही है, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही है और बच्चा बस ब्लैंकली
ब्लैक बोर्ड की ओर देख ही जा रहा है, ना वो कुछ कर रहा है एक्टिविटी, ना अगर उसके आगे पीछे आप उसको ध्यान से पूछने चाहो कि क्या कर रहे हो, कहाँ हो, तो वो कोई उसका रिप्लाई नहीं दे पाएगा, बिकॉज वो एक डिस्कनेक्ट कट ऑफ हो जाता है। या सडनली कोई अचानक से किसी को बहुत ज्यादा एंजाइटी फेयरफुलनेस डेवलप हो रही है। और नॉट ओनली सीजर्स, कुछ चीजें होती हैं जिसको हम ऑरा सिम्टम्स कहते हैं, जो मतलब मिर्गी फिट होने से पहले मरीज को महसूस होने लग जाते हैं, जिसमें स्पेशली जो होता है कि बहुत लोगों को एक पेट में अजीब सी सेंसेशन लगती है कि कोई गैस जैसी बन रही है या गोला सा बन रहा है जो धीरे 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 हमारी दिमाग की ओर जा रहा है, या कुछ अजीब सी बहुत गंदी स्मेल्स आने लग जाती है, या किसी को बहुत ही एक्सेस में घबराहट फियर जैसी सेंसेशन होने लग जाती है, या बैठे बैठे एक्यूट कंफ्यूजन में चले जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जो हमें सीजर को पहचानने आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। Now let's talk about something that many people with epilepsy face: stigma. Can you tell us why epilepsy is often misunderstood? See, being in an Indian setup, working in India, I can just say that there is still a lot of ignorance regarding this disorder, epilepsy. एंड अभी भी बहुत, अगर आप थोड़े से भी रूरल एरियाज में जाएंगे तो अभी तक एक ही अंधविश्वास चलता है कि फिट अगर किसी को पड़ता है या मिर्गी किसी को पड़ती है तो बहुत लोग इस चक्कर में जाते हैं कि शायद कोई मतलब कोई माता आ गई है, या कोई किसी ने काला जादू कर दिया है, कोई ऐसे छोटी छोटी चीजों को लेके जो अंधविश्वास होते हैं उनको फॉलो करते हैं, और काफी टाइम तक वो निग्लेक्ट करते हैं। वो इसको मानते हैं कि नहीं, कुछ पूजा पाठ करवाएंगे, कुछ हवन करवाएंगे, कुछ ऐसी चीजें करवाएंगे जिससे ये सब चीज चली जाएगी। बट द थिंग इज दैट दे बेसिकली डिले द डायग्नोसिस, दे डिले द ट्रीटमेंट, and these patients land up to us, to a neurologist, maybe years later. ईयर्स मतलब बहुत लंबा टाइम होता है, मतलब 5-6 सालों से सीजर्स हो रहे हैं, आपको फिट्स हो रहे हैं, और वो बस निगलेक्ट हो ही जाए। या बहुत बारी लोग कहते हैं कि तो साइकोलॉजिकल है, ये तो बस एक मतलब मन गढ़ंत, वो अपने आप को ऐसे हिला रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। तो बहुत सारी ये चीजें होती हैं। प्लस जिन लोगों को एक्चुअल में ये बीमारी होती है उनके प्रति भी बाकी जो पब्लिक है, जो बाकी आसपास उनके रहने वाले, उनके कभी कभी their own relatives, they behave very differently with them, like they just maintain a distance। उनको लगता है ये शायद बीमारी हमें भी फैल जाएगी, तो एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। या किसी बच्चे को हो ये बीमारी तो बाकी पेरेंट्स बोलते हैं कि उस बच्चे के साथ नहीं खेलना है, उससे दूर रहना है, वो बीमारी तुम्हें भी लग जाएगी। और बहुत महिलाएं स्पेशली दे सफर, दे आर विक्टिम्स ऑफ दिस, बिकॉज क्या होता है ना कि महिला की जब अगर कोई फिट्स या एपिलेप्सी वाली कोई फीमेल है, उसकी शादी कर दी जाती है, तो उसको मतलब अपने ससुराल जाके वहाँ पे फिट पड़ जाता है, तो मेनी टाइम्स दे से कि दिस इज नॉट अ गुड थिंग, और शायद अब इसके बच्चे में भी ये दिक्कत आएगी, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको लेकर एक स्टिग्मा बन जाता है, और लोग उसको नहीं अच्छे से डील करते हैं। द थिंग इज दैट पेशेंट इज द सफरर एक्चुअली इन दिस केस। Absolutely. Now let's move on to managing epilepsy. What are the common triggers for seizures that patients and caregivers should be aware of? हाँ, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इवन मैं ये बताऊंगी, मतलब सिंस इट इज इन अवेयरनेस थिंग, सो पीपल हु हैव बीन डायग्नोज्ड विद एपिलेप्सी, जिनको पता है कि हमें ये मिर्गी की बीमारी है, प्लीज डू नॉट स्किप योर मेडिसिन। मतलब आपको डेली जैसे भी आपकी मेडिसिन की डोज बताई गई है, जो भी टाइमिंग्स बताई गई हैं, बी वेरी विजिलेंट एंड स्टिक टू योर मेडिसिन। मतलब हम तो ये भी कभी कभी कह देते हैं कि मतलब दवाई आपका एक डोज भी अगर स्किप हो जाए तो देर आर चांसेस यू कैन हैव फिट द सेम डे, द नेक्स्ट डे, और एनी टाइम सून। सो आपकी मेडिसिन कंप्लाइंस अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, आपका स्लीप साइकिल अच्छा होना चाहिए। सो मिनिमम वी से प्रॉपर स्लीप शुड बी फॉर 6 to 8 hours एट स्ट्रेच एट नाइट। फ्लैशेस ऑफ लाइट, बहुत सारी लाइट्स, डीजे वाली लाइट्स, या जो लाइट्स चेंज हो रही हैं, फ्लैशिंग हो रही है, तो वो वाली लाइट से आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। Even we say that skipping meals, keeping frequent fast,
और उस दौरान भी अपनी दवाइयों को मिस करना, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग. So high stress levels, high tension, they also trigger seizure. So these are a few things which we as caregivers or we as patients can ourselves take care of. Thank you so much, doctor. To wrap up, could you share some safety tips to help prevent injuries during seizures? Yes. So if you know there is a epilepsy patient in your neighborhood, in your relation, or at your home, so what you can do is जहाँ पे भी जो उनका room है, you try to keep sharp things away. कोई नुकीली चीज पड़ी हुई है, कोई ऐसे tables हैं जिनके edges sharp हैं, या कुछ ऐसे चीजें आपको लगता है कि आसपास पड़ी हैं उनके बेड के साइड पे या कुछ ऐसे, तो उनको आप हटा के रखिए. क्योंकि दौरा किसी भी टाइम पड़ सकता है, खड़े खड़े पड़ सकता है, बेड पे लेटे लेटे पड़ सकता है. सो द चांसेस ऑफ हैविंग अ सीजर रिजल्टिंग इन अ फॉल इज वेरी कॉमन थिंग. तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जिससे कि वो गिरे और उनके हेड पे वो चीज़ चुभ जाए, लग जाए, जिससे उनको और फर्दर डैमेज हो, कोई हेड इंजरी हो जाए. तो कोई तारे वारे लूज नहीं होनी चाहिए जिसमें आपका पैर फंस जाए या आप पैर उसमें फंस जाए और आप उस टाइम उसके साथ साथ गिर जाएं. ऐसी चीज़ें मतलब यू कैन अवॉइड. एंड आई थिंक वही है कि अगेन यू नीड टू just keep a few SOS medication which are available in the form of sprays if you feel the seizure is not ending in the appropriate time जो हम बताते हैं अपने फिट्स के पेशेंट को. तो you can use that as an SOS medicine. and definitely आप कभी अपने मतलब पेशेंट को हमेशा एक करवट में लिटाइए, नेवर स्ट्रेट फ्लैट, बिकॉज दैट कैन रिजल्ट इन एस्पिरेशन. Thank you so much, doctor. This has been incredibly informative and helpful. We hope today's discussion helps listeners better understand epilepsy and how to support themselves or their loved ones, of course. Any final thoughts? Yes, two things I want to say कि epilepsy is treatable. So please do not run away from this disease and don't develop that fear कि बस सब तो एक बार ये दवाई start हो गई है तो अब ये permanent ही खानी पड़ेगी or something like that. Secondly, प्लीज़ बी वेरी स्ट्रिक्ट विद द कंप्लायंस. अपनी दवाइयाँ टाइम से खाइए. अगर आप टाइम से खाएंगे तभी हम आपकी दवाइयाँ हो सकता है टेपर करके जल्द से जल्द, अगर आपका इलाज ठीक से चल रहा है, कोई फिट्स नहीं हो रहे, तो उसको हम हटा पाएंगे. And especially for the pregnant females, because a lot of women have this common myth in their head कि जब वो pregnant हो जाती हैं तो whether these medicines are safe or not. So आजकल बहुत advancement है and there are few medications which are very safe. So you should never leave your medicines. If you are a diagnosed patient of epilepsy and you are planning a family or have conceived, so please continue with your medicines and do definitely have a regular follow up with your neurologist as well as your gynecologist. Thank you, doctor. And thank you to our listeners. Until next time, take care and stay informed.